رویل اسکر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت مذاکرات کا جواب مثبت اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ویسی بات یہ ہے کہ میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں، تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں آگے سے کہتا ہوں آپ کو وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ جی اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اتنے سارے سوالات کیے ہیں، ان کا ایک اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ہے آپ کا ریلیف، بجٹ میں ریلیف کے متعلق۔ جی، یہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے۔ باقی آپ چھوڑے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، باقی سارے معاملات چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، کوئی پلس ہوتا ہے کوئی مائنس ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنے کرنی کا بھرنا ہے۔ لیکن شیخ صاحب، سیاسی حالات بھی معیشت سے جڑے ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی ابھی صاحب میں نے ختم تو نہیں کیا نا۔ جی فرمائیے۔ سیاست کا معاشی حالات کے ساتھ اس لیے میں نہیں کرتا کہ یہاں پہ کبھی بھی ایسا سیاسی جس کو آپ آئیڈیل وکرم صاحب کہتے ہیں نا ماحول، وہ کبھی نہیں رہا، اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا آپ نے اسٹرانگ فوٹنگ پہ آئے ہیں تو ساتھ ہی اس میں بریک لگ گئی، اور ساتھ ہی اس پہ آپ واپس چلے گئے، اور جہاں سے آپ چلے تھے وہیں پہ واپس چلے گئے۔ اب جو اس وقت جو سینیریو ہے نا، جو اس وقت وکرم صاحب آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، زیرک ہیں، آپ کی بہت دور تک نظر ہے، تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے اس کا فوکس جو ہے نا، جو پریورٹی ہے وہ اس وقت ہے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنا، کیونکہ اس کے دیکھیں نا، اس کے علاوہ اس کے بغیر تو نہ آپ کے الیکشن ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ آپ کا ملک آگے ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام آپ کے جو ہے خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اگر آج حساب کریں تو آپ کے پاس 73 ڈیز ہیں الیکشن تک، تو ان 73 ڈیز میں 73 دنوں میں کیا ہو سکتا ہے معجزہ؟ میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی عقل پہ رونا آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے، الیکشن، اچھا چلیے آپ کی بات مان لیتا ہوں، کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، جس بندے نے خود اپنے آپ کو گہرائی میں پھینکا ہے، ورنہ کوئی اور تو نہیں تھا اس معاملے میں، کوئی کسی نے اس کو میرے نہیں خیال کے فورس کیا ہو۔ جس وقت لوگ، آپ میرے خیال میں شاید آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا، مجھے یاد ہے تھوڑا ہلکا یاد پڑتا ہے کہ 2018 میں سب سے پہلے تو آصف زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی تھی، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے یہ بات میرے خیال میں کی تھی، مجھے خیال ہے آپ شاید اس کو بہتر سمجھتے ہیں، کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، اور جو معصوف نے جو اس وقت مذاق اڑایا تھا، جو اس شخص نے جو باتیں کی تھیں، اللہ مان، کوئی سیاسی آدمی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ بین ہی پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر تھے میاں شہباز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی گفتگو فرمائی تھی، اور ان کا بھی جو شر کیا تھا ان کی گفتگو کا، میرا خیال میں کوئی شریف آدمی اس چیز کو برداشت تو نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے برداشت کیا۔ اور پھر اس کے بعد آج وہی دیکھیے، اب ذرا حالات کی کروٹ دیکھیے کہ جن لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، جن لوگوں سے وہ سلام لینے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے، آج وہ منٹیں ترلے کہ آپ کر لیں، میں تو ہر وقت کہتا تھا گفتگو کر لیں۔ شیخ صاحب، پھر آپ لوگ ہی سن لیں نا منتے ترلے، ملک کے لیے آپ لوگ ہی چلیں۔ میری ایک بات سن لیں، میں آپ کو گزارش کروں، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھتی ہے، ذاتی رائے، تو یقین کیجیے اگر میں پالیسی میکر ہوں تو میں اس کے ساتھ سلام لینا بھی گوارا نہ کروں۔ اچھا، کیونکہ اگر شخص پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہو جائے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو تباہی کے در پہ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو تاریخ دانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب لکھیں، تاریخ لکھیں، تو آپ کو بھی اس کا اتنا ہی مورد الزام دیں جتنا وہ اس کو دیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، اب ذرا دوبارہ وہ الیکشن والی جگہ پہ آ جائیے کہ الیکشن تو دستور کا تقاضا ہے، یہ کسی کے کہنے یا سننے سے تو نہیں ہوگا، مطلب آپ کی حکومت اگست میں، یہ اسمبلیاں چونکہ ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی پی ڈی ایم الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ اچھا، میری سن تو لینا بات ہے،
दस्तूर में शायद आपने एक शिक नहीं पढ़ी। अब मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, दस्तूर के मैंने 2 मास्टर देखे हैं, एक और दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक सैफुल्लाह साहब थे और एक डॉक्टर नियाज़ी साहब थे। उनको अज़बर याद था दस्तूर का एक एक पन्ना। मैं तो इतना ज्यादा ना उसमें मेरा अबूर है, ना ही मुझे इतनी गुस्सा महसूस है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें एक शायद है इसमें कि आप ऐसे हालात अगर हों जो बड़े संगीन हालात हों, तो उसमें आप करंट जो होती है आपकी असेंबली, उसको 1 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा के बिल्कुल आप आगे ले जा सकते हैं। चलिए जो भी आप कर लें, इमरजेंसी लगा ले, जो भी कर लें, तो अगर पाकिस्तान के मफाद में है तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई तो मजायका नहीं है। और एक मैं और हबीब अकरम एक बात और आपसे अर्ज कर दूं, जिस किस्म के सियासी हालात रखे गए, जिस किस्म की अनरेस्ट रखी गई, कोई भी मुल्क आप में इंटरेस्ट नहीं ले सकता, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका हशर आपने देख लिया था ना, जो सीपैक का हशर किया गया था। अब आप आ जाइए इस वक्त मौजूदा दौर में, ये कभी मुमकिन नहीं है कि जो हालात इस वक्त ग्लोबली बन रहे हैं, वो तो ग्लोबली एक नया एक बन रहा है ना ब्लॉक, और उस ब्लॉक के तो अमेरिकन जो है वो तो कभी भी उसको पसंद नहीं करेंगे, और जिंदगी में कभी नहीं किया उन्होंने। और जहां पे एक फर्क देखना, एक फर्क ये है कि अमेरिकन जो है आपको पैसा देते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं। दूसरा ब्लॉक जो है वो पैसा नहीं देता, वो डेवलप करता है। वो डेवलपमेंट का ये फायदा ये होता है कि आपका मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। इस वक्त बहुत बड़ा स्टेक है, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, लेकिन शेख साहब, ये आपकी ऑब्जर्वेशन शायद ग्लोबली इतनी करेक्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, वहां पे मामला ठीक नहीं हो सके। अफ्रीका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई चीन की, वहां पर मामला ठीक नहीं हो सके। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, वहां पर मामला ठीक नहीं हो सके। मैं थोड़ी सी आपसे गुजारिश करूं जी, पाकिस्तान का और रशिया अपना श्रीलंका का आप मुकाबला नहीं कर सकते, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना आप अफ्रीका के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ना आप अफगानिस्तान के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक नेचुरल सी एक ऐसी सिचुएशन बन गई हुई पाकिस्तान की, जो खित्ता जो है ना वो एक अपनी इंपॉर्टेंस खुद रखता है। तो इसका मतलब यह है कि हम ये समझें कि इसका मतलब यह है कि आप चीन का ब्लॉक ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। मैंने साल की बात की है, मैंने 10 साल की बात तो की नहीं। हाँ, आप ये जरूर कीजिए कि कोशिश कीजिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि चीन अगर वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो काशर की बजाय वो ग्वादर से शुरू करे। अच्छा। अगर ग्वादर से शुरू करता है तो फिर हबीब अकरम साहब आप सोच सकते हैं कि किस किस्म के इसके हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे मुआशी, क्योंकि उससे आप देखें कितनी इंडस्ट्री चलेगी, उससे कितने लोग एम्प्लॉय होंगे। और अगर वो एक दिन का तो प्रोजेक्ट है नहीं, उसको 5-6 साल लगेंगे उस प्रोजेक्ट। अच्छा शेख साहब, चलें, ये बात आपकी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन कराने से क्यों भाग रहे हैं? अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात भी पूरी होती नजर आ रही है। अच्छा ये भी बता दें, ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है नून लीग पे कि अस्करी क़यादत की पीटीआई से नाराजगी का फायदा उठा रही है नून लीग। ये इल्जाम कौन लगा रहा है? मुझे उस बंदे का नाम जरा बताएं। यकीनन आपके सियासी हरीफ ही ये इल्जाम लगा सकते हैं, हम तो नहीं लगा रहे। मुझे बता देना कौन सा हरीफ है। पीटीआई वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं। पीटीआई वाले कल तक जब जूतियां चाटते थे, जब उनके जाके पलड़े में बैठे हुए थे, जब उनकी दुआएं और उनकी बलाएं लेते थे, उस वक्त ठीक थे। आज उनको तकलीफ हो गई। आज क्या तकलीफ हो गई? मतलब ये बातें अब ना करें, बस इन बातों को अब आप छोड़ दीजिए। ये बातें करने से आप अपना ही खून जलाएंगी और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो शेख साहब, आपको कोई रिकंसिलिएशन की सूरत नजर आ रही है कि मुल्क में डिस्टर्बेंस खत्म हो और आगे बढ़े? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अब तो आपके सामने है, अब तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। अच्छा शेख साहब, तो जो लोगों ने किया है, जिस तरह किया है, वो डिस्टर्ब है हबीब अकरम साहब। अच्छा शेख साहब, जो लोग आम आदमी तो डिस्टर्ब नहीं, आम आदमी तो सर मैंने आपको बताया अपनी महंगाई से तो आम आदमी बहुत डिस्टर्ब है शेख साहब। अच्छा ये मैं सियासी मैं दो चीजें आप रखे ना, एक आप सियासी रखें, एक आप मुआशी रखें। सियासी तौर पे आम आदमी डिस्टर्ब नहीं है, मुआशी एग्जैक्टली मुआशी तौर पे आम आदमी डिस्टर्ब है। अच्छा शेख साहब, फोकस करना चाहिए मुआशियात की तरफ।
शेख साहब, ये जो नई जमातें बन रही हैं, नई पार्टीज वजूद में आ रही हैं, नून लीग कोई खतरा तो नहीं महसूस करी इन जमातों से? और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी तो तरीके इंसाफ छोड़ने वालों को धड़ाधड़ अपने साथ शामिल करी है, नून लीग किसी को लेगी? देखना, अब जिन लोगों ने सियासत करनी है उन्होंने किसी न किसी जमात में तो जाना ही है। अच्छा। और अगर नून लीग, अगर फर्ज कीजिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, नून लीग के पास अगर कोई जगह खाली है तो डेफिनेटली उसको एडजस्ट कर लेगी। और अगर वहां पे नून लीग का कोई कैंडिडेट मौजूद है और बड़ा पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद है तो हमाकत होगी किसी ऐसे बंदे को वहां पे लाके बिठा देना। ठीक। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आप खुद इस तरह की सूरत हाल से गुजर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्त रखने वाले लोगों पर स्पेशली पुलिस ने शिकंजा तंग किया हुआ है पंजाब में, और उन्हें पकड़ पकड़ के जेलों में धांसा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये अच्छा काम है? हबीब अकरम, मैं आपकी गुजारिश करूं, क्राइम होता है दो तरह का। एक है पॉलिटिकल क्राइम, आप जितना मर्जी अपने मुखालफिन को रगड़ दें, उनके खिलाफ आप जैसा मर्जी आप एक्शन ले लें, वो जब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो लोग आपको बातें करेंगे, लोग डेफिनेटली आप पे उंगली उठाएंगे, वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन जो ये चंद रोज पहले जो कुछ हुआ है, आप समझते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है या ठीक किया गया? नहीं, ये तो गलत है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ जिन्होंने जुलूस कहीं और निकाला था उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। आप समझे नहीं, ये आपकी इख्तरा है ना, ये आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां जो कुछ किया जिसने, वो उसके अपने शिकंजे में है। मैं खुद आपको जाती तौर पे बता सकता हूँ, मैं खुद, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों का तल्लुक है। और अच्छा, अब ये कहा जाए कि जी मैं तो वैसे ही वहां से गुजर रहा था, खुदा के बंदे, तुझे गुजरने के लिए वही जगह रहेगी थी, तुझे और कोई जगह नहीं थी। और इस एक घर में अगर फर्ज कीजिए 5 अफराद है, तो फिर एक फर्द को, उसी फर्द को जिस पे शक है या जो उस जगह पे मुलव्वस था या जिसका ट्रेस हुआ है, उसी को क्यों, बाकी किसी को क्यों नहीं कुछ कहा जाता? अच्छा शेख साहब, ये बता दें, नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? ये उनका मामला है जी, वो फैसला करेंगे। देखें ना, मैं अपना फैसला कर सकता हूँ कि मैं कब जा रहा हूँ लाहौर, इंशाल्लाह परसों सुबह जाऊंगा। नहीं, पार्टी में, आपके पार्टी के लीडर हैं, पार्टी में कोई बात तो होती है ना कि वो कब तक आ जाएंगे, उनका आना जरूरी है। नहीं, बात ये है कि ये सहीहन उनका फैसला या उनके मौलिज का फैसला। अच्छा। मैं इस बारे में किसी किस्म की कोई आपको अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि माजी में कुछ लोगों ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी थी और बगैर किसी मतलब बगैर किसी कंफर्मेशन के। तो फिर मैं तो, मेरी अब उम्र, अभी हम सब मुझे जानते हैं, मेरी उम्र देखें कितनी है, मैं अपने इस उम्र में आके अपनी बेइज्जती नहीं आपसे करवाना चाहता। ये हबीब अकरम ने मुझे छोड़ना ही नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये तो बता देना, आप खुद भी अभी इस चीज को एडमिट कर रहे थे कि महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं, तो ये जो बजट आने जा रहा है 9 जून को, कितना रिलीफ आवाम को मिलेगा? किस चीज की उम्मीद रखें इस हुकूमत से आवाम? देखो, मैं आपको एक गुजारिश करूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा मैं कि माहिर मुआशियात तो हूं नहीं। हाँ, एक झटका सा मेरे से, वैसे ही झटका सा आदमी सीधा सा था। यकीन करो, मेरे बस में होना तो जितनी ऐसी एशिया जो पाकिस्तान का अलीट तबका या अमीर तबका इस्तेमाल करता है, यकीन करो मैं उसकी इतनी कीमत कर दूं। अच्छा। कि गरीब आदमी की जो शिया है उनको इतना सस्ता कर दूं कि उस कीमत से आप उसको कंपनसेट कर लेंगे। अच्छा। मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी उल्टी सी मिसाल है। सिगरेट है, सिगरेट कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। ठीक। और अगर अमीर आदमी के पीने वाले सिगरेट को मैं मिसाल के तौर पे अगर वो एक 500 का है तो मैं उसको 1000 का कर दूं, तो आप देखिएगा वो फिर पिएगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो गरीब आदमी अगर हल्का सा सिगरेट पी के मरना चाहता है तो आप उसकी मौत क्यों छीन रहे हैं यार उसके हाथ से? तो मेरा लेकिन शेख साहब, आपकी हुकूमत है तो इसे अंडू किया ना, उन्होंने पहले सिगरेट महंगा किया, टैक्स ही नहीं जमा हो सका उससे। मैं आपको गुजारिश करूं, यहाँ पे एक ऐसा माफिया है और एक ऐसी स्कैंडल है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। उसके लिए बड़ी सख्त इकदाम करने पड़ेंगे और वो उसके लिए आइडियल
पॉलिटिकल आइडियल सिचुएशन की जरूरत होती है, जहाँ पे आप इस किस्म के फैसले करते हैं ना, फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन। तो इसहाक डार साहब ये सब कर लेंगे? इसहाक डार साहब अब तक तो हमें नहीं कुछ नजर आया कि उन्होंने कुछ किया, IMF से मुआहदा तक नहीं हो सका। नंबर है इसहाक डार साहब का? यकीनन है। भाई आपके पास नंबर है तो टेलीफोन करके पूछ लो। अच्छा। मेरा नाम शेख रोहेला इसहाक डार तो है ही नहीं। शेख साहब आपका ओपिनियन ले रहे हैं ना, हमने आपको प्रोग्राम में आपके, लेकिन वो डार नहीं हूँ। अच्छा शेख साहब लास्टली ये बताइएगा कि आप एक ऐसी कमेटी के मेंबर थे जिसने साकिब निसार साहब के साहबजादे पर केस चलाना था या उसकी तहकीक करनी थी ऑडियो लीक की, वो तहकीकात कहाँ तक पहुंची? आपने सुना नहीं आज हाई कोर्ट ने माशाल्लाह सदके जावा इन्हों दे मतलब मैं यही कह सकता ना, इसके अलावा तो मैं बेगम कुछ नहीं कह सकता, मरवाना है मुझे। सदके ही जाते रहो। पार्लियामानी कमेटी के आप मेंबर थे ना? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं सदके जाऊं उनके, उन्होंने आज हुक्म ने इम्तनाई जारी कर दिया। यानी कि ये भी हमें दिन देखना था कि असेंबली की कार्रवाइयां जो हैं उनको मांगा जाता है, असेंबली की कार्रवाइयों को अनडू किया जाता है, असेंबली की कमेटियों को उनको उनके ऊपर कदगन लगाई जाती है, असेंबली की कमेटियों के ऊपर इब्तदाई जारी कर दिया जाता है। शेख साहब 7 अप्रैल 2022 का फैसला था अदालत का और वो आप ही की पार्टी के फेवर में आया था। असेंबली के अंदर की कार्रवाई को 7 अप्रैल 2022 को उस पर फैसला दिया, स्पीकर रूलिंग केस का। मैं नहीं याद रखता इसको। मेरी याददाश्त जो है बड़ी कमजोर है, बड़ा बूढ़ा आदमी तो पता है, यादें माजी अजाब हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रोहेला असगर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं।